The students of Commerce Section Saraswati Vidya Mandir. In previous video, we analyzed the money creation or credit creation by banking system, which is most important function of banking system. But there is a question arise in all of our minds that how much credit created by a banking system? It is a question. So the answer is, as example, we reserve 20% CRR from the primary deposit. How much credit created by banking system? It is a question. Thus, the answer is how much credit created by banking system from a certain amount of deposit, and after keeping some reserve amount in the form of CRR. It depends upon money multiplier. Money multiplier. Mudra Gunak, money multiplier, or it is also can be said as a credit multiplier. Credit multiplier or money multiplier. First of all, we have to define money multiplier. It measures the amount of money. It measures the amount of money that the banks are able to create in the form of deposit with every unit of money it keeps in reserve. यानी अपने कुल जमा से और जितना राशि वो रिजर्व में रखता है, तो रिजर्व रखे गए प्रत्येक यूनिट ऑफ मनी के एवज में वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है. इट मीन्स दैट द होल मनी मल्टीप्लायर, द अमाउंट ऑफ और द वॉल्यूम ऑफ मल्टीप्लायर इज डिपेंड अपॉन रिजर्व, CRR, कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो अगर हम बढ़ा देंगे तो अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, और अगर CRR को हम घटा दें तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा. Thus, once again, money multiplier or credit multiplier measure the amount of money that the banks are able to create in the form of deposit with every unit of money it keeps in reserve. रिजर्व में रखे गए मनी जो कि हम CRR कहते हैं, जिसको उसके आधार पर जो टोटल डिपॉजिट है उस बेसिस पे बैंक आर एबल्स टू क्रिएट क्रेडिट. यानी द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, द प्राइम फैक्टर विच इज डिसाइड द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज CRR और द अमाउंट विच इज kept at reserve. It is calculated as money multiplier equal to 1 by LRR. LRR इक्वल टू क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो. लीगल रिजर्व रेशियो हैज फर्दर टू पार्ट्स: CRR, कैश रिजर्व रेशियो, विच वी रेड अर्लियर, एंड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो it refers that ratio or amount which a commercial bank have to keep with the RBI in the cash form. And some time to time RBI used to change the ratios according to inflation or deflation of the economy. So LRR is the prime factor or crucial factor which going to be decide the multiplier. What is multiplier itself? तो multiplier गुणक, that is the multiplier. multiplier का वो हमने अवधारणा को, जैसे आगे जाकर हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे. RF खान ने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर दिया था. मल्टीप्लायर की अवधारणा क्या है? मल्टीप्लायर कहता है कि इट रेफर्स द चेंज इन इनिशियल अमाउंट इज मच टाइम मोर than the initial amount, and that it multiplier is a process in which it is indicated that if we invest 100 crore at a time at a place, that 100 crore able to bring 10 times more or 20 times more income in future, and it's depend of it says the process of multiplier. ये ठीक वैसा ही है कि जैसे आप किसी शांत पोखरे में एक पत्थर फेंकते हो और तब जो आपको डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, दैट द डिस्टरबेंस विच इज जनरेट ड्यू टू उस पेबल्स के कारण, तो दैट विल बी कंटिन्यू टिल इट नॉट गेट द टच द एज ऑफ द पॉन्ड्स. We all often used to see that phenomenon. That is multiplier. Multiplier initiate action and
कन्वर्ट इनटू मल्टी टाइम ग्रेटर रिजल्ट, दैट इज मल्टीप्लायर। तो उसी तरह से मनी मल्टीप्लायर में एक छोटे से अमाउंट प्राइमरी डिपॉजिट के सहारे हम क्रेडिट क्रिएट करना शुरू किए, एज वी डिस्क्राइब इन प्रीवियस एग्जांपल इन प्रीवियस वीडियो, एंड that on the basis of that we see that a banking system able to create much more than the initial deposit or primary deposit, बहुत ज़्यादा वो क्रेडिट क्रिएट करने में सक्षम होते हैं। तो LRR लीगल रिजर्व रेशियो, LRR हैज further two parts, CRR cash reserve ratio and SLR statutory liquidity ratio. अब now we understand this whole process through an example. इफ हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट हमारा जो कि 1 लाख था, हम 1 ही लाख रखे हैं। इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1 लाख एंड LRR या जिसको आप CRR कहते हो, अगर हम उसको मान लें कि वो 20% है, जैसा कि हमारा के पिछले एग्जाम्पल में था, LRR और CRR इज 20%, देन LRR जो 20% है वो हमारा हो जाएगा कितना, चूंकि ये 1/LRR हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.20। दस मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR इक्वल टू हो जाएगा 1/0.20 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये गया 2 20 5 हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर का हमारा वैल्यू आ जाएगा 5 टाइम्स। अब देख लीजिए, इनिशियल डिपॉजिट इक्वल टू 1 लाख, टोटल डिपॉजिट अगर हम लोग निकालें कि बैंकिंग सिस्टम कितना क्रिएट कर पा रहा है, तो टोटल डिपॉजिट इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट हमारा 1 लाख का था, इनटू मनी मल्टीप्लायर हमारा 20% था, यानी 1/LRR हमारा है 0.20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा ये 5 लाख रुपया मान लीजिए। यानी हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हम लोग 1 लाख रुपया प्राइमरी डिपॉजिट रखे थे और CRR 20% रखे थे, उस स्थिति में बैंक का मल्टीप्लायर वैल्यू जो है वो K इक्वल टू 5 था, यानी कि बैंक उस 1 लाख के प्राइमरी डिपॉजिट से 20% CRR रखते हुए वो 5 लाख तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकती है। That type of question can be came in sorted form। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में एग्जाम्पल। मनी मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, ये 4 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी मल्टीप्लायर, डिस्क्राइब इट विथ अ एग्जाम्पल। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा हाई पावर्ड मनी के बारे में पढ़ेंगे। अभी मनी मल्टीप्लायर को एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्ट हम समरी दे दें। मनी मल्टीप्लायर जो या क्रेडिट मल्टीप्लायर जिसको हम कहते हैं, इसके आधार पर हम बैंकिंग सिस्टम के द्वारा कितना साख का सृजन किया जा सकता है इसकी गणना कर सकते हैं, इसकी माप कर सकते हैं। मनी मल्टीप्लायर को डिफाइन हमको करना है कि ये माप करता है कि बैंक, अब मोटे अर्थों में मनी मल्टीप्लायर उस अमाउंट को, उस राशि की माप करता है जो बैंकिंग सिस्टम अपने प्राथमिक जमा से और रिजर्व रखते हुए और आरक्षित निधि के आधार पर वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज मनी मल्टीप्लायर को 1/LRR, LRR जिसको हम लोग लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं, उसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं, CRR और SLR। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख है और LRR 20% है, देन LRR इक्वल टू 20 और 1/0.20 हो जाएगा इक्वल टू 5। इनिशियल डिपॉजिट हमारा 1 लाख है, टोटल डिपॉजिट इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू मनी मल्टीप्लायर 1 lakh into 1/0.20 equal to 5 lakh. That is, measure the amount of money that the bank are able to create in the form of deposit with every unit of money it keeps in reserve. I hope that you all understand this money multiplier concept. You must have to make notes over it, the whole in your homework book, and also solve some numerical problem which is given in your chapter. That's all. Till then, bye.